in the previous two classes, we have discussed a lot on the failure of theories. Okay, we have covered the failure of theories on the uniaxial stresses. We have covered. We have covered all 5 types of theories. First theory says sigma 1 should be less than equal to SYT, or if we are using factor of safety, then it is SYT divided by FS. Treat SYT as SYT divided by FS. Factor of safety is must in the designs. So we generally take the factor of safety. So first we have to divide the yield point stress by the factor of safety. Then this will be our design stress. This will be our design stress. So the stress produced in our component should be less than the design stress. Should be less than the design stress. अभी तक हम किससे compare करते रहे हैं? Yield point stress से compare करते रहे हैं. When we divide yield stress by the factor of safety, then we will get the design stress. And now we have to compare with the everything with the design stress or design strain, like this, these things. So in the case of uniaxial stress, sigma 1 is given by this. तो इस थ्योरी का नाम क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. दूसरी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट एक रिकैप कर रहा हूँ 2 मिनट में, है ना. दूसरी थ्योरी में हमने क्या किया था? एप्सिलॉन 1 शुड बी लेस देन इस थ्योरी का नाम क्या था? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी. स्ट्रेन थ्योरी. और उसके बाद हमने एक एनर्जी वाला कंसेप्ट समझा था. तो एनर्जी इज गिवन बाय सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2e, एंड दिस एनर्जी शुड बी लेस देन द एनर्जी एट द यील्ड पॉइंट, है ना, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो u should be less than UIT divided by factor of safety. You can say in this way. Or UIT is a function of SYT. UIT is a function of SYT square. So you can say here sigma YT divided by FS whole square. So you use factor of safety with stress, not with the strain. You have the formula for yield point stress. So yield point stress is given by SYT square divided by 2 times Young's modulus. So when you will involve factor of safety in this, then your formula will be like this: SYT divided by FS whole square divided by 2 times Young's modulus. So this formula will be changes to this formula when we will use the factor of safety in our design. We will just divide SYT by the factor of safety. I think it is clear now. ठीक है, 3 थ्योरी हो गई. चौथी हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी पढ़ी थी हमने. तो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के केस में यूडी को हमने कैसे फाइंड किया था? यू में से हमने यूवी को माइनस कर दिया था, और यूडी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया था? 2 + 2 न्यू डिवाइडेड बाय 6e इनटू SYT होल स्क्वायर. बताइए फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था? यस सर. है ना, यील्ड पॉइंट के लिए ये आया था. यदि SYT की जगह पर मैं सिग्मा 1 रख दूं तो फिर वो यूनिएक्साइल के लिए आ गया था. दैट वी हैव प्रूव्ड. ये हम क्लियर कट प्रूव कर चुके हैं, है ना. उसके बाद एक और लास्ट थ्योरी थी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. तो शियर स्ट्रेस के केस में शियर स्ट्रेस को हम यील्ड पॉइंट स्ट्रेस से कंपेयर कर देते हैं, है ना. टाउ शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ बाय टी, है ना. दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. तो ये हम कवर कर चुके हैं, है ना, इन द लास्ट क्लासेस. और इसके अलावा हम ये भी कवर कर चुके हैं ऑन दी बाईएक्साइल पर भी हमने स्टडी की है. बाईएक्साइल पर हमने केवल 3 थ्योरीज की स्टडी की है. आउट ऑफ 5 वी हैव कवर्ड 3 थ्योरीज. फर्स्ट थ्योरी इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस. तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस लाई करते हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, है ना. इन दोनों में जो भी ग्रेटर होता है उस ग्रेटर को हम कंपेयर कर देते हैं अगेन SYT डिवाइडेड बाई
फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि डिजाइन स्ट्रेस के साथ हम इसको कंपेयर कर देते हैं. So this is our maximum principal stress theory for the biaxial stresses. Now that we have covered. Similarly, we have also covered the maximum principal strain theory. So there will be epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. All three will be exist. Here sigma 3 is not existing. Although sigma 3 is not existing, but we have very much well known that epsilon 3 will exist. We will calculate all the principal strains, and whichever principal strain is greater, let epsilon 1 is greater than epsilon 2, epsilon greater than epsilon 2 greater than epsilon 3, then I will compare epsilon 1 with the epsilon yt. I will compare epsilon 1 with the epsilon yt. So this is our maximum principal strain theory. Similarly, we have also worked on the maximum strain energy theory. Maximum strain energy theory. So we have also derived a formula for the maximum strain, and that formula was just like 1 by 2e sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 times mu sigma 1 sigma 2. That we have derived in the yesterday's class. कल की क्लास में हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था. फिर डिराइव करने के बाद ये जो हमको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी दैट वी हैव गॉट, वी विल कंपेयर दिस एनर्जी विद द यील्ड पॉइंट स्ट्रेन एनर्जी. है ना, वी विल कंपेयर. इफ दिस एनर्जी is less than the yield point strain energy, then our component is safe. Then our component is safe. So we have also covered these three theories. Hai na? So for biaxial case, we have covered 1, 2, 3, and now we will cover remaining theories. Out of this, one is maximum distortion energy theory, and one is maximum shear stress theory. ठीक है, तो अभी आज का फोकस क्या है? We will work on biaxial stresses. We will cover these two theories. Then we will move towards triaxial stresses. And we will again cover the 5 theories for that, for the triaxial stresses. And after that, we will go for a numerical to apply these theories in case of tutorial classes or numerical classes. So that I am clearing this board. So my today's focus is on the biaxial stresses, the remaining 2 theories. So first theory, let I take maximum distortion energy theory. Maximum distortion energy theory. Distortion energy theory. So as you already know that this is a mechanical component. Sigma 1 is acting in one direction, sigma 2 is acting in other direction. Sigma 3 in this case is 0 because it is a biaxial problem. So sigma 3 is 0. I am converting this figure into again 2 parts, just like uniaxial stresses. So one is for distortion and one is for volumetric change. Strain energy is divided into 2 parts. One is strain energy due to distortion, and one is strain energy due to volumetric change. Same concept. So in case of volumetric stress, the stress is sigma v in one direction. In other direction, it is also sigma v, and in the third direction, it is also sigma v. And sigma v is always calculated as the average of all the 3 stresses. So stress number 1, stress number 2, stress number 3. So sigma v will be given by sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 divided by 3. So here sigma 3 is 0. So this is ultimately sigma 1 plus sigma 2 divided by 3. This is our sigma v. So what I have to do, I have to just find the strain energy in this case. So strain energy I have already found. I have derived 1 by 2e sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 nu sigma 1 sigma 2. This is the total strain energy. So I will calculate the strain energy due to change in volume, and I will subtract that strain energy. I will calculate uv, and then I will subtract uv from u
then I will find ut. This will be the concept, है ना। और यही कंसेप्ट हमारा यूनिएक्सेल के केस में भी था, वही करना है। और यदि आप यहाँ पे देखना चाहें डिस्टॉर्शन के स्ट्रेसेस की यदि आप स्टडी करना चाहते हैं, then you have in this direction the total stress is sigma 1. Out of sigma 1, sigma v has been used for the volume change, so the remaining stress is sigma 1 minus sigma v. sigma v. And similarly in this direction the total stress is sigma 2. Sigma v is already used for the volumetric change, so the remaining stress is sigma 2 minus sigma v. And in the third direction the total stress is 0, and out of 0 sigma v has been used, so it is 0 minus sigma v, so it is minus sigma v, है ना। You can say minus sigma v or you can change the direction and you can write plus sigma v, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, minus means it is a direction change, it is a compression problem. So this is the distortion. तो इस पर काम करना थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है डिस्टॉर्शन पर काम करना डायरेक्टली। तो हम थोड़ा इजीली तरीका अपनाते हैं, हम पहले टोटल स्ट्रेन एनर्जी पता करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। केवल हमारा काम क्या है, हमको यूवी फाइंड करना है, और यूवी जैसे ही फाइंड होगा हम यू में से यूवी को माइनस कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, यूडी मिल जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। तो चलिए मैं जरा बोर्ड को क्लियर कर लेता हूँ, और अब मेरा फोकस होगा यूवी पर। तो यूवी तो मैंने कल भी निकाला था, है ना, कल भी मैंने यूनिएक्सेल केस के लिए यूवी निकाला था। तो देखो ये सिग्मा वी है, ये सिग्मा वी है, दिस इज आल्सो सिग्मा वी। तो जो strain energy due to change in volume will be given by half of sigma v epsilon v plus half of sigma v epsilon v plus half of sigma v epsilon v, क्योंकि all the three direction में stress same है। So in x direction, in y direction, in z direction, or in the 1 2 3 direction, we will get the same component. So this will be added to 3/2 sigma v epsilon v. Okay, now put the value of sigma v. So sigma v we have already calculated, it is the average stress, so it is sigma 1 plus sigma 2 divided by 3, because sigma 3 is 0, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर सिग्मा v की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे, लेट इट इज सिग्मा v and what is epsilon v? Epsilon v is given by epsilon, due to this stress we will get the linear strain, so it is sigma v by e, minus due to this stress we will get literal strain in this direction, so literal strain is given by nu times sigma v divided by e, and similarly due to this stress we will get literal strain in this direction, so it is nu times sigma v by e. So this is the linear strain and these two components are the literal strain. So this can be solved as 1 minus 2 nu sigma v divided by e. ये हमने कल भी निकाला है। देखो यूनिएक्सेल केस एक बार समझ में आ गया तो बाई एक्सेल तो बस उसको फॉलो करना है, नथिंग एल्स। तो हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दीजिए, एप्सिलॉन v की वैल्यू पुट कर दी हमने 1 minus 2 nu into sigma v divided by e। अब इसको हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 3/2 e sigma v into sigma v square, so it is 1 minus 2 nu, so it is sigma v square, so it is finally 3/2 e 1 minus 2 nu, and what is the value of sigma v? Sigma v is sigma 1 plus sigma 2 divided by 3। इस पर ध्यान दीजिए, sigma v की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, so it is sigma 1 plus sigma 2 divided by 3 होल स्क्वायर। तो हमारा फंडा क्या रहता है, हम हर चीज को जो कैलकुलेट करते हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, है ना। सारी चीज हमारा जो लास्ट रिजल्ट है वो किस फॉर्म में आ जाए, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के फॉर्म में आ जाए, है ना। सो दिस इज द फाइनल यूवी, इसको आप लोग याद रखिएगा, दिस इज द फाइनल यूवी, ठीक है। 3/2 e 1 minus 2 nu sigma 1 plus sigma 2 by 3 का होल स्क्वायर, यूवी आ गया। अब यूवी जब आ गया तो फिर तो क्या करना है, यू में से यूवी को माइनस करना है। तो चलिए मैं जरा सा इरेजर ले लेता हूँ, ये मैंने इरेजर ले लिया और मैं एक दो लाइन को जरा सा रब ऑफ कर देता हूँ।
अब मुझे क्या करना है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी में से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी को माइनस करना है। तो जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो मुझे डिस्टॉर्शन एनर्जी मिल जाएगी, और उस डिस्टॉर्शन एनर्जी को फिर मैं यील्ड पॉइंट डिस्टॉर्शन एनर्जी से कंपेयर कर दूंगा, है ना। यही मुझे करना है, बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं यू डी, है ना। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डिस्टॉर्शन इज गिवन बाय यू माइनस यूवी, u minus ub. So what is the value of u? u is given by 1 by 2e, ये हम डिराइव कर चुके हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 न्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस uv। uv का ये पूरा फॉर्मूला है, इस पूरे फॉर्मूले को पुट कर दीजिए, 3 by 2e into 1 minus 2 न्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको माइनस करके सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या फॉर्मूला मिलने वाला है, बता सकता है कोई क्या फॉर्मूला आएगा? 1 प्लस न्यू डिवाइडेड बाई 6e, है ना। मैं स्टेप पे नहीं जा रहा हूँ, ये सॉल्यूशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, है ना। इसमें 2-3 स्टेप लगेंगे कॉमन वॉमन निकाल करके, देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट एज ud will be 1 plus mu by 6e 2 sigma 1 square plus 2 sigma 2 square minus 2 sigma 1 sigma 2. This will be the result. Correct? ये हमको क्या मिल गया, डिस्टॉर्शन एनर्जी मिल गई। अब इस डिस्टॉर्शन एनर्जी को क्या करना है, हमें कंपेयर करना है ना। इस एनर्जी को कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, यील्ड पॉइंट एनर्जी के साथ कंपेयर करना है। और यील्ड पॉइंट की एनर्जी क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द यील्ड पॉइंट? यील्ड पॉइंट की एनर्जी तो कल हम प्रूव कर चुके हैं, है ना। जो यूनिएक्सियल केस की एनर्जी थी उसमें सिग्मा 1 आ रहा था, तो सिग्मा 1 की जगह पे उसमें क्या आ जाएगा, ST आ जाएगा, बस इतना ही अंतर आने वाला है। तो वो उस एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। यील्ड पॉइंट एनर्जी का फॉर्मूला ये था, U/T इज गिवन बाय ST स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 न्यू डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मूला कल हमने प्रूव किया था, 2 कॉमन ले लिया था, फिर 2 3 या 6 भी कर दिया था, तो अभी मैंने वही लिख दिया है। दिस इज द यील्ड पॉइंट स्ट्रेन एनर्जी। ये भी हम यूनिएक्सियल के लिए हमने प्रूव किया था, तो वहां सिग्मा 1 स्क्वायर आया था, बस सिग्मा 1 के स्क्वायर की जगह ST स्क्वायर यूज करना है। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, तो कंपेयर करने पे क्या होगा, 6e से 6e कैंसिल आउट हो जाएगा, 6e से 6e क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और देखो 1 प्लस न्यू यहाँ पर है, यहाँ 2 प्लस 2 न्यू है, 2 कॉमन ले लेंगे आप, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस न्यू बचेगा, 1 प्लस न्यू ही बचेगा, तो 1 प्लस न्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 सिग्मा 1 में से 2 सिग्मा 2 और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 2 प्लस 2 न्यू पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 भी खत्म हो गया, 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो अल्टीमेटली मेरे पास इक्वेशन बची सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू ST स्क्वायर। Now, this is the result that we will use in our calculations, है ना। एक चीज और कर सकते हैं इसमें, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 will be given by ST divided by factor of safety। तो अभी मैंने इस यील्ड पॉइंट स्ट्रेस को क्या बना दिया, डिजाइन स्ट्रेस बना दिया, और मैंने अपनी एनर्जी को एक तरह से डिजाइन स्ट्रेस के, डिजाइन एनर्जी के साथ, डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी के साथ, डिस्टॉर्शन एनर्जी के साथ कंपेयर कर दिया। So this is the final formula for the biaxial stresses that we will use when we will use the distortion energy theory। तो उस केस में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस 1, प्रिंसिपल स्ट्रेस 2, यील्ड पॉइंट एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। केवल 4 चीजों के पता होने से हम कंपोनेंट की डायमेंशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। We will be able to find the dimension of the component as per this theory। तो दिस एंड्स दिस थ्योरी। अब इस थ्योरी में कोई आपकी डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं, अन्यथा हम फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की तरफ जाएंगे बाय एक्साइल केस में, लास्ट थ्योरी होगी। सर डिस्टॉर्शन को यील्ड एनर्जी से क्यों कंपेयर करा है सर? देखो
जब कंपोनेंट पर, मैं जरा से क्लियर कर देता हूं पहले, जब कंपोनेंट पे हम स्ट्रेस लगाते जाते हैं, तो जब हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे टेंशन टेस्ट करते हैं, तो हम पहले कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर ग्रेजुअली इस फोर्स को इंक्रीज करते चले जाते हैं, है ना। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हमको यील्ड फिनोमेना ऑब्जर्व होती है, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, SYT। तो एक तरह से ये मटेरियल का फेल्योर है, ठीक है। तो इस स्ट्रेस का एक पार्ट यूज होता है डिस्टॉर्शन के लिए, और एक पार्ट यूज होता है स्ट्रेन एनर्जी चेंज ड्यू टू वॉल्यूम के लिए, ठीक है। एक टोटल स्ट्रेन एनर्जी को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, यील्ड पॉइंट की स्ट्रेन एनर्जी भी दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक डिस्टॉर्शन एनर्जी में और एक वॉल्यूमेट्रिक चेंज एनर्जी में। तो जब हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, है ना, वॉन माइसिस ने ये थ्योरी दी थी, तो वॉन माइसिस ने ये बोला कि डिस्टॉर्शन एनर्जी, किसी मटेरियल में यदि स्टोर होने वाली डिस्टॉर्शन एनर्जी यदि यील्ड पॉइंट पर स्टोर होने वाली डिस्टॉर्शन एनर्जी से ज्यादा हो जाए तो वो मटेरियल फेल हो जाएगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। सो दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग डिस्टॉर्शन विद डिस्टॉर्शन, और टोटल स्ट्रेन एनर्जी में वी आर कंपेयरिंग टोटल स्ट्रेन विद द टोटल स्ट्रेन एट द यील्ड पॉइंट। तो जैसा जिस थ्योरी का नाम है हम वैसे ही कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वेरी मच क्लियर, we are using distortion energy and we are comparing with the distortion energy at the yield point. I think it is clear. Yes sir, clear. तो अब मैं जरा सा लास्ट थ्योरी पे चलता हूँ। तो लास्ट थ्योरी का नाम है, मैं कौन से स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, बाई एक्साइल, है ना, बाई एक्साइल, जिसमें सिग्मा 1 एग्जिस्ट करता है, सिग्मा 2 एग्जिस्ट करता है, सिग्मा 3 एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो आपको भी पता है कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। एक तो ये तीनों से निकलता है ना, तीन स्ट्रेस आ जाते हैं, है ना, टॉ 1 बोल सकते हैं आप, दूसरा टॉ 2 बोल सकते हैं, तीसरा टॉ 3 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तीन स्ट्रेस हो जाएंगे आपके। दूसरा क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, और तीसरा क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। ठीक है, ये तो हमें कंसेप्ट पता है ना कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को माइनस करके आधा कर दो तो शियर स्ट्रेस मिल जाता है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को माइनस करके आधा कर दो तो क्या मिल जाता है, शियर स्ट्रेस मिल जाता है। तो हमारे पास तीन शियर स्ट्रेस आ गए। अब इसमें देखो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 एग्जिस्ट करते हैं, सिग्मा 3 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, सिग्मा 2 बाई 2 हो जाएगी डायरेक्ट, है ना। और इस केस में सिग्मा 3 एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा 1 बाई 2 हो जाएगी। अब आपके पास तीनों ही स्ट्रेस अवेलेबल है, दिस स्ट्रेस इज अवेलेबल, दिस स्ट्रेस इज अवेलेबल, है ना। तो न्यूमेरिकली जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता है कि विच स्ट्रेस इज ग्रेटर, है ना। तो इनमें से जो भी बड़ा होगा, लार्जर ग्रेटर होगा, उसको हम मान लेते हैं कि टॉ 1 is greater than tau 2 greater than tau 3, let this is the assumption। तो यदि ऐसा है तो उस केस में we will compare tau 1 with the yield point shear stress, so that is given by SYS, correct। तो यदि हम tau 1 को कंपेयर करेंगे तो tau 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू SYS को हम क्या लिख सकते हैं, SYT डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तो हमें पता है कि यील्ड पॉइंट स्ट्रेस इन शियर इज जस्ट हाफ ऑफ द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस इन टेंशन। तो इस तरह से जब आप 2 और 2 को काट रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू SYT। ठीक है, और यदि कंप्रेशन का केस हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस SYT, है ना, प्लस माइनस यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन मिल गई। एक स्ट्रेट लाइन मिल गई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल टू SYT, और दूसरी स्ट्रेट लाइन मिल गई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस SYT। ठीक है, तो जब हमने उधर ग्राफ खींचा था सेफ रीजन का, है ना, अभी हमने जब यूनिएक्साइल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हमने ग्राफ खींचा था
तो एक एक्सिस हमने सिग्मा 1 लिया था, दूसरा एक्सिस हमने सिग्मा 2 लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में हम क्या करते थे, सिग्मा 1 इक्वल टू प्लस माइनस एस बाई टी, यही तो करते थे। यदि सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सिग्मा 1 इक्वल टू एस बाई टी, दिस इज आवर लाइन। दूसरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस एस बाई टी। ठीक है, उसी तरह से सिग्मा 2 पे काम होता है, तो सिग्मा 2 के लिए फिर हम वही दो लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक सिग्मा 2 के लिए एक लाइन आती है हॉरिजॉन्टल और दूसरी लाइन भी हॉरिजॉन्टल आती है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ABCD जो है, मान लो रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, तो ये जो रेक्टेंगल है ABCD, ये हमारा क्या हुआ करता था, सेफ रीजन हुआ करता था। क्या हुआ करता था, सेफ रीजन हुआ करता था। तो ABCD वाज द सेफ रीजन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सेफ रीजन हुआ करता था। लेकिन अब हम यदि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की बात करें, तो अब हमें दो स्ट्रेट लाइन और मिल गई हैं। तो यदि मैं इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना चाहूँ, है ना, इस स्ट्रेट लाइन को मैं प्लॉट करना चाहूँ, तो वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आएंगी, है ना। इस फिगर को अब इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, देखो एस बाई टी से इसको डिवाइड कर दो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई एस बाई टी प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई एस बाई टी माइनस एस बाई टी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन मैंने अंदर ले लिया है, इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन को देखिए जरा, और इस इक्वेशन को देखिए, ये दोनों एक ही चीजें हैं। मैंने पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया, एस बाई टी से डिवाइड कर दिया, एस बाई टी से डिवाइड कर दिया। तो अब ये इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की इस फॉर्म में बदल गई है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, आप लोगों ने पढ़ा है ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। कोई भी दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, और यहाँ से आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका एक एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। तो इस पर्टिकुलर लाइन की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो सिमिलरली अब एक्स वाई की जगह पे यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आर योर एक्सिस, तो सिग्मा 1 बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस सिग्मा 2 बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट कौन सा है आपका, ये वाला है ना, एस वाई टी, और वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। तो इन दोनों से जो लाइन जाएगी, ये जो लाइन जाएगी, ये लाइन इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल टू एस वाई टी। ये इस लाइन को आप मैंने ड्रॉ कर लिया, प्लॉट कर लिया। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं इस लाइन की बात करूं, तो इस लाइन में यदि मैं माइनस एस बाई टी से डिवाइड करूंगा, तो माइनस एस बाई टी, तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा, इसमें देखो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव आया है, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आया है। इस वाली लाइन में एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, तो वो लाइन कुछ इस तरह से चली जाएगी, इस तरह से चली जाएगी। सर एक बात पूछनी है सर, एक बार फिर से समझाऊं इस चीज को। नहीं सर, कुछ पूछना है सर, पूछना है कुछ। अच्छा, पूछना है, पूछिए। सर एक बात सर, जैसे सर हमने सिग्मा 1 जो है वो एक्स डायरेक्शन में ली है, तो सिग्मा 1 को वाई डायरेक्शन में भी ले सकते हैं? सिग्मा 1 को वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में, मतलब देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस के जो प्लेन होते हैं ना, प्रिंसिपल स्ट्रेस के जो प्लेन होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो जिस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैंने अज्यूम कर लिया है कि सिग्मा 1 का प्लेन मैंने हॉरिजॉन्टली दिखाया, तो सिग्मा 2 का जो प्लेन है वो वर्टिकल होगा। तो मैंने फर्स्ट एक्सिस सिग्मा 1 ले लिया, दूसरा एक्सिस सिग्मा 2 ले लिया। ठीक है सर, तो अगर हम सिग्मा 1 को वाई एक्सिस पे लेना चाहे और सिग्मा 2 को एक्स एक्सिस पे लेना चाहे, तो ले सकते हैं इंटरचेंज, हाँ कर दो, फिर आपकी थोड़ी सी ज्योमेट्री बदल जाएगी, कर सकते हैं। लेकिन जनरल कंसेप्ट यही है कि पहले वाला स्ट्रेस प्लेन, स्ट्रेस जो होगा उसको जनरली लोग हॉरिजॉन्टल लेते हैं। यदि आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसको सिग्मा 1 कर दीजिए, इसको सिग्मा 2 कर दीजिए, फिर आपकी जो स्ट्रेट लाइंस हैं कुछ उस तरह से कट जाएंगी, है ना, पर अल्टीमेट रिजल्ट आपका सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट कर लिया। तो प्लॉट करने से जो ABCD रीजन था,
अब वो रीजन में से ये वाला पार्ट क्या हुआ, बाहर निकल गया। ये देखो, ये वाला जो एक ट्राइंगल है, ये पार्ट अब सेफ रीजन में नहीं है। पहले ये सेफ रीजन में था, लेकिन अब ये सेफ रीजन में नहीं है। सिमिलरली इधर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये पहले सेफ रीजन में था, लेकिन अब ये सेफ रीजन में नहीं है, क्योंकि इसको दो लाइनों से कट कर दिया गया है रेक्टेंगल को। और ये कट किसकी वजह से हुआ है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के कंसेप्ट से कट हुआ है। क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के केस में हमको दो स्ट्रेट लाइन मिली हैं, और उन स्ट्रेट लाइंस को जब हम प्लॉट कर रहे हैं, तो अब हमारे पास सेफ रीजन जो है वो हमारे पास क्या बच गया, केवल हमारे पास अब ये सेफ रीजन बचा। तो सेफ रीजन को मैं जरा सा मार्क कर देता हूं। नाउ दिस इज द सेफ रीजन, ये जो मैंने आपको दिखाया है, अब ये सेफ रीजन है। ठीक है, पहले रेक्टेंगल सेफ रीजन था, तो अब इस रीजन को यदि मैं नाम देना चाहूं तो मैं कैसे दे सकता हूं। देखो, दिस इज ए पॉइंट, ये हमने बी ले ही लिया था, तो इसको सी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इसको डी पॉइंट ले लेते हैं, नहीं डी तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसको ई ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट के नाम दे रहे हैं, है ना, सी ई, नहीं सी भी पहले से था, तो डी तक तो पहले से थे ना, तो मैं यहां से देता हूं ई और इसको एफ दोबारा से। तो चार पॉइंटों के नाम तो मैं पहले ही दे चुका हूं, अब मेरे को जो नए पॉइंट मिले हैं उनकी मैं मार्किंग कर रहा हूं। तो ए बी सी डी तो मेरे पास है, तो डी के बाद में मैंने ले लिया ई, दिस इज पॉइंट एफ, है ना, एक ये नया पॉइंट है, लेट दिस इज पॉइंट जी, एक ये नया पॉइंट है, लेट दिस इज पॉइंट एच। ठीक है, तो अब यदि मैं इसको देखूं तो ए ई एफ सी जी एच। ठीक है, अब ये जो क्या बन रहा है, ये एक तरह का हेक्सागन बन रहा है। कितनी इसकी साइड्स हो गई, देखो एक साइड, हाँ 6 साइड्स हो गई, एक ए ई, दूसरी ई एफ, तीसरी एफ सी, फिर सी जी, फिर जी एच और एच ए। तो ये हेक्सागन बन गया अब आपका। तो कहने का मतलब जो सेफ रीजन पहले रेक्टेंगल था, अब वो सेफ रीजन हेक्सागन में कन्वर्ट हो गया है ड्यू टू दिस थ्योरी। ठीक है, और यदि आप इस पॉइंट पे काम कर रहे होते, मान लो ये वाला पार्ट अब इस थ्योरी के हिसाब से अनसेफ है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से तो ये जो ब्लू कलर वाला जो पार्ट है ये सेफ पार्ट था, लेकिन अब ये पार्ट अनसेफ है एज पर दिस थ्योरी। ठीक है, इसी तरह से ऊपर से एक पार्ट, तो अब ये हेक्सागन में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, अब मान लो बॉन माइसिस के केस में, एक बार फिर से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के केस में तो हमको क्या मिला, रेक्टेंगल मिला। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को हमने दो पार्ट में कट कर दिया, एक लाइन हमने नीचे से कट कर दी, दूसरी लाइन हमने नीचे ऊपर से कट कर दी, तो अब हमको क्या मिल गया, हेक्सागन मिल गया, है ना। अब मैं कंटिन्यूअस में पॉइंट ले लेता हूं, सो ए बी सी डी ई और एफ। तो पहले मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से हमको क्या मिला था, रेक्टेंगल सेफ रीजन था। इस थ्योरी के हिसाब से सेफ रीजन थोड़ा सा कम हो गया, एरिया के हिसाब से देखें तो सेफ रीजन हमारा थोड़ा सा कम हो गया। अब ये जो कंसेप्ट हैं ये हमारे काम में आएंगे कि कौन सी थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए यूजफुल हो जाएगी, कौन सी थ्योरी डक्टाइल के लिए। एक अभी हम थोड़ा सा एक अगली क्लास में या तो एक डिस्कस करेंगे कि कौन सी थ्योरी किस मटेरियल के लिए सुटेबल होगी, है ना। तो पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले सभी थ्योरीज को। तो रेक्टेंगल में हम मिल गया हमको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से, हेक्सागन मिल गया हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से, तो ये तो शियर के हिसाब से मिल गया, शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से, और ये हमको मिल गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से। अब हमने एक वो और थ्योरी पढ़ी, कौन सी पढ़ी थी, अभी पढ़ी थी जस्ट, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी पढ़ी थी। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में हमको एक फॉर्मूला मिला था, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू एस बाई टी स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला मिला था। इस फॉर्मूले की यदि आप मैथमेटिकली एनालिसिस करेंगे, when you will analysis this formula mathematically, then you will find this represents an ellipse. ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, और इलिप्स के एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। ठीक है, तो वो इलिप्स को यदि आप प्लॉट करेंगे, है ना, अब इसमें पूरी थोड़ा डिटेल मैथमेटिक्स है कि ये इलिप्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है, और फिर इसका मेजर एक्सिस क्या होगा, इसका माइनर एक्सिस क्या होगा, है ना। उतनी ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं, बस अभी ये समझ रहे हैं कि ये फॉर्मूला एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, और उस इलिप्स को यदि हम प्लॉट करें तो वो इलिप्स इन्हीं 6 पॉइंटों से होता हुआ जाता है।
ए बी सी डी ई एफ, इन्हीं 6-9 पॉइंट से होता हुआ निकलता है। ठीक है, तो वो इलिप्स कुछ ऐसे आएगा आपका, इन्हीं 6 पॉइंटों से होता हुआ इलिप्स निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, ये इलिप्स जो बन रहा है ये कौन सी थ्योरी के हिसाब से बन रहा है? डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या मिल गया? इलिप्स मिल गया। ये कौन सी थ्योरी से मिल गया हमको? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के हिसाब से। करेक्ट। अब देखो इसमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि हेक्सागन जो है वो पूरी तरह से इलिप्स के अंदर है, इनसाइड है ना। तो यदि हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से बात करें तो पूरा रेक्टेंगल सेफ जोन है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से बात करें तो एक ट्रायंगल यहां से कम हो गया, एक ट्रायंगल यहां से कम हो गया। यदि हम इलिप्स के अकॉर्डिंग बात करें तो और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस से कंपेयर करें तो अब ये वाला पार्ट आउटसाइड है, ये अनसेफ पोर्शन है ना, ये अनसेफ पोर्शन है, ये अनसेफ पोर्शन है। और देखो जो पहले अनसेफ था अब वो सेफ भी हो गया है। ये वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए, जो पहले अनसेफ था किसके हिसाब से? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से जो अनसेफ था वो इस थ्योरी के हिसाब से सेफ हो गया है। तो बाईएक्साइल के केस में आपको हर थ्योरी एक अलग सेफ रीजन दे रही है ना। तो अब ये फर्क है यूनिएक्साइल केस और बाईएक्साइल केस में। यूनिएक्साइल के केस में हर थ्योरी आपको एक पर्टिकुलर रीजन देती है, हर थ्योरी सेम रिजल्ट देती है, हर थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को फॉलो करती है इन केस ऑफ यूनिएक्साइल स्ट्रेसेस। बट इन केस ऑफ बाईएक्साइल स्ट्रेसेस हर थ्योरी सेफ रीजन को डिस्टर्ब कर देती है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग सबका सेफ रीजन अलग अलग आता है। और जब सबका सेफ रीजन अलग अलग आता है तो फिर हमको ये इस बात को डिसाइड करने में मदद करती है कि कौन सी थ्योरी किस मटेरियल के लिए, डक्टाइल के लिए, ब्रिटल के लिए किस तरह यूजफुल हो सकती है। तो यूजफुलनेस पे बात हम अभी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अभी बस जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि इसके जो प्लॉट्स होते हैं, एक का रेक्टेंगल होता है, एक का हेक्सागन होता है, एक का इलिप्स होता है, और इलिप्स के अंदर ही हेक्सागन लाई करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछ लेते हैं इन चीजों को। तो चलिए, दिस कवर्स बाईएक्साइल स्ट्रेसेस फुली। अब हम आते हैं ट्राईएक्साइल स्ट्रेसेस पर। कितना टाइम है हमारे पास अभी? वी हैव 10-13 मिनट्स है ना। चलो जस्ट को जल्दी से खत्म कर देंगे क्योंकि अब पता है हमें सारी चीजें। तो पहली थ्योरी क्या कहती है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, है ना। बड़े आराम से आप बता देंगे। अब तो तीनों लाई कर रहे हैं, तीनों लाई कर रहे हैं, मतलब सिग्मा 1 भी लाई कर रहा है, सिग्मा 2 भी लाई कर रहा है, सिग्मा 3 भी लाई कर रहा है। तो इन तीनों में से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक बड़ा होगा ना। तो मान लो कि सिग्मा 1 बड़ा है तो सिग्मा 1 को कंपेयर कर देंगे, तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस एस वाई टी। यदि सिग्मा 2 बड़ा हुआ तो क्या मिल जाएगा? सिग्मा 2 इक्वल टू प्लस माइनस एस वाई टी। सिग्मा 3 बड़ा हुआ तो क्या मिल जाएगा? सिग्मा 3 इक्वल टू प्लस माइनस एस वाई टी। तो कितनी स्ट्रेट लाइंस मिल गई आपको? 1 2 3 4 5 6, है ना। अब आपके 3 एक्सिस में जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के बाद में आपको पहले जो रेक्टेंगल मिल रहा था, तो रेक्टेंगल की जगह पे आपको क्या मिल जाएगा? क्यूबॉइड मिल जाएगा, है ना। तो अब आप बात ये समझने की है कि बाईएक्साइल केस में जो सेफ रीजन रेक्टेंगल था, अब ट्राईएक्साइल के केस में वो सेफ रीजन आपका क्यूबॉइड होगा। क्या होगा? क्यूबॉइड होगा। शियर स्ट्रेस थ्योरी के केस में जो सेफ रीजन हेक्सागन था, बाईएक्साइल के केस में वो सेफ रीजन यहाँ पे हेक्सागोनल का एक 3D फिगर होगा। समझ रहे हैं आप? जैसे रेक्टेंगल का 3D फिगर क्यूबॉइड है, उसी तरह हेक्सागन का एक 3D फिगर होगा। सिमिलरली इलिप्स का एक 3D फिगर होगा, इलिप्स और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी के केस। तो यू हैव सम आइडिया कि बाईएक्साइल से जब हम ट्राईएक्साइल की तरफ जा रहे हैं तो हम 3D ज्योमेट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो उस केस में फिर हमको सारी चीजों को मैट्रिक्स फॉर्म में काम करना पड़ता है। तो मैट्रिक्स मतलब वही फिर मैटलैब कंसेप्ट आ जाता है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। तो फिर इस 3D वाली कैलकुलेशंस को मैटलैब में बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं यदि आपको मैट्रिक्स के फंक्शंस बहुत अच्छी तरह आते हैं तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम प्रिंसिपल भी बहुत सिंपल है। सिमिलरली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी बहुत सिंपल है। सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 तीनों लाई कर रहे हैं, कोई जीरो नहीं है। तो टाउ 1 आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। टाउ 2 क्या हो जाएगा? सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2।
तो 3 क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2। बहुत आसान है, बस इनको कंपेयर कर दो यील्ड पॉइंट के साथ, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, जो बड़ा हो उसको कंपेयर कर दो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस इन शियर के साथ। तो ये 2 थ्योरी खत्म होती हैं। अब मैं आता हूँ थर्ड थ्योरी पर। थर्ड थ्योरी हमारी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो बहुत आसान है, सिग्मा 1 लाई कर रहा है, सिग्मा 2 लाई कर रहा है, सिग्मा 3 लाई कर रहा है ना। एप्सिलॉन 1 कैलकुलेट कर लो, एप्सिलॉन 2 कैलकुलेट कर लो, एप्सिलॉन 3 कैलकुलेट कर लो। बहुत ही आसान है। एप्सिलॉन 1 के लिए ये लीनियर देगा, बाकी दोनों क्या देंगे, लिटरल देंगे। एप्सिलॉन 2 के लिए ये लीनियर देगा, बाकी दोनों क्या देंगे, लिटरल देंगे। एप्सिलॉन 3 के लिए ये लीनियर स्ट्रेन देगा और बाकी दोनों लिटरल स्ट्रेन देंगे। तो कोई एक लिख देता हूं बस मैं, बाकी आप अपने आप लिख लेना। सिग्मा 1/e माइनस न्यू टाइम्स सिग्मा 2/e माइनस न्यू टाइम्स सिग्मा 3/e। इसी तरह से आप इनको भी लिख सकते हैं इन द सिमिलर फैशन। तो मान लेते हैं कि ये वाली स्ट्रेन सबसे बड़ी है, तो इस स्ट्रेन को हम कंपेयर कर देंगे किसके साथ, वही यील्ड पॉइंट के साथ। कंपैरिजन हमेशा यील्ड पॉइंट के साथ ही हम करेंगे, ठीक है। और उससे हम क्या निकाल लेंगे, डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो ये तीसरी थ्योरी भी खत्म होती है। इस थ्योरी का नाम क्या था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। अब मैं आता हूं चौथी थ्योरी की तरफ, थ्योरी नंबर 4। तो थ्योरी का नाम क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। बहुत आसान है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, हाफ सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1, हाफ सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2, हाफ सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3। तीनों लाई करते हैं, सिग्मा 1 लाई कर रहा है, सिग्मा 2 लाई कर रहा है, सिग्मा 3 लाई कर रहा है, एप्सिलॉन 1 लाई कर रहा है, एप्सिलॉन 2 लाई कर रहा है, एप्सिलॉन सब कुछ लाई कर रहा है। तीनों टर्म एग्जिस्ट करेंगे। बाई एक्साइल के केस में ये वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि सिग्मा 3 0 हो जाता है। तो कंसेप्ट वही है। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 1, एप्सिलॉन 1 की जगह आप वैल्यू रख दीजिए जो भी आपने निकाली थी, सिग्मा 1/e माइनस न्यू टाइम सिग्मा 2/e प्लस न्यू टाइम माइनस न्यू टाइम सिग्मा 3/e। तो ये वाली वैल्यू को आप सिग्मा एप्सिलॉन 1 की जगह पुट करिए, सिमिलरली एप्सिलॉन 2 की वैल्यू पुट करिए, एप्सिलॉन 3 की वैल्यू पुट करिए और उसको पूरे को सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, है ना, वो आप कर लेना। तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। तो फाइनल रिजल्ट विल कम 1/2e ब्रैकेट में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 न्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 plus sigma 3 sigma 1. This will be the final result for the maximum strain energy. ठीक है। अब यदि आपको इस फॉर्मूले में यदि आप सिग्मा 3 को 0 पुट कर देंगे तो आपका बाई एक्सेल का फॉर्मूला बन जाएगा। यदि आप सिग्मा 2 और सिग्मा 3 दोनों को 0 पुट कर देंगे तो आपका यूनि एक्सेल का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का इस फॉर्मूले को याद रखिए, इज इंपॉर्टेंट, है ना। हर केस की स्ट्रेन एनर्जी आपको बिल्कुल जवानी आनी चाहिए। 1/2e दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2 न्यू दिस। ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी हो गई। अब इस स्ट्रेन एनर्जी को हम कंपेयर कर देंगे किसके साथ, वही यील्ड पॉइंट के साथ कंपेयर कर देंगे। और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कोई मैकेनिकल कंपोनेंट as per maximum strain energy theory, a mechanical component under triaxial stresses will fail when the maximum strain energy stored in the component is more than the maximum strain energy stored at the yield point. कंपैरिजन किसके साथ करना है, यील्ड पॉइंट के साथ, है ना। और वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाली चीजें अपने आप चलती रहेंगी। SYT को हमेशा आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है तो फिर ये SYT ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। तो चलिए चौथी थ्योरी कंप्लीट हो गई। यहां तक कोई डाउट? थोड़ा सा फास्ट किया है मैंने, ट्राई एक्सेल सही है। हाँ, तो अब 4 थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 5वीं थ्योरी पे आते हैं लास्ट, और उसके बाद इस क्लास को फिर हम एंड करेंगे। तो 5वीं थ्योरी का नाम क्या है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ठीक है। अब इस एनर्जी थ्योरी में क्या है, बिल्कुल उसी तरह से काम होगा। ये कंपोनेंट है, सिग्मा 1 लाई कर रहा है, सिग्मा 2 लाई कर रहा है, सिग्मा 3 लाई कर रहा है। ठीक है। इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो कितनी हो रही है, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, 1/2e सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर
-2 न्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ये हमने अभी डिराइव किया फॉर्मूला। तो ये अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, एक तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डिस्टॉर्शन और दूसरा हम डिवाइड कर दे रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, है ना। बिल्कुल वही कंसेप्ट चल रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम का कंसेप्ट बिल्कुल वही है। डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में इक्वल स्ट्रेसेस आएंगे, सिग्मा वी सिग्मा वी सिग्मा वी। और सिग्मा वी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, सिग्मा एवरेज। और सिग्मा एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 3। ये बात हो गई। अब इसकी स्ट्रेन निकालना बड़ा आसान है। यू वी बराबर क्या था, 3/2 सिग्मा वी अपसिलॉन वी। अपसिलॉन वी पता है ना। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो यूवी का आंसर आपका आ जाएगा। तो ट्राई एक्साइल केस में यूवी का जो आंसर आता है वो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। यूवी का आंसर आता है, फाइनली आप इसको मिला लेना, 1 - 2 न्यू डिवाइड बाई 6c, और यहाँ पे आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक रिदम बन रही है। देखो, जब बाई एक्साइल में था तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होल स्क्वायर था, जब यूनी एक्साइल में था तो केवल सिग्मा 1 स्क्वायर था। अब ट्राई एक्साइल में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 होल स्क्वायर। बाकी ये वाली फिगर तो तीनों में सेम है, 1 - 2 न्यू बाई 6c, चाहे यूनी एक्साइल हो बाई एक्साइल, याद रखने के लिए भी आसान है। तो ये हमारा ट्राई एक्साइल केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी आ गई। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसको तो काम करना कठिन है, तो हम क्या करेंगे, u में से uv को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ud निकालने के लिए हम u में से uv को माइनस कर देंगे। uv हम निकाल चुके हैं, u हम निकाल चुके हैं, माइनस करना है। अच्छा, ud की यदि हम सिचुएशन देखें तो बिल्कुल उसी तरह से आप बना सकते हैं सिचुएशन को। ऐसे बना सकते हैं, टोटल स्ट्रेस सिग्मा 1 था, सिग्मा भी यूज हो गया तो बचा कितना, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा बी। इसी तरह से इधर कितना बचा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा बी। और इस डायरेक्शन में कितना बचा, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा वी। दिस इज द सिचुएशन। देख रहे हैं आप, यूनी एक्सेल समझ में आ जाए तो ट्राई एक्सेल 5 वर्ड में समझ में आता है। तो बस अब यूडी माइनस यू बी आप कर दीजिए। तो यू आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला यू का है, दिस इज यू, और ये यूवी का है। दोनों को माइनस करने के बाद और सॉल्व करने के बाद, है ना, दोनों को माइनस करने के बाद और सॉल्व करने के बाद, अब मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ, आप माइनस कर लेना, सॉल्व कर लेना, है ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो आपकी, फटाफट 3-4 स्टेप में उसको सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो आंसर मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। तो इसको जरा मैं क्लियर करता हूँ पहले। यूडी ट्राई एक्सेल केस की बात चल रही है, लास्ट थ्योरी है ये, इसी के बाद हम अपनी क्लास को भी एंड करेंगे। सो यूडी इज गिवन बाय यू माइनस, अब न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, बिकॉज टाइम इज नॉट परमिटिंग अस। सो यू माइनस यू वी, है ना। तो जब इसको u की वैल्यू पता है, u पता है, सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आपका आएगा, सो दैट विल बी 1 प्लस न्यू डिवाइडेड बाय 6e, या 2 प्लस 2 न्यू कर लो, डिवाइड बाय 6e, और इधर आ जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ये आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है। ठीक है, अब इस फाइनल आंसर को कंपेयर किसके साथ करोगे, कंपैरिजन किसके साथ करोगे, यील्ड पॉइंट के साथ कंपेयर करोगे। यील्ड पॉइंट के साथ ही कंपेयर करते हैं हमेशा। अब यील्ड पॉइंट की डिस्टॉर्शन एनर्जी कितनी है वो भी आपको पता है, कितनी है, 2 प्लस 2 न्यू, एक मिनट यहाँ लिखता हूँ, यील्ड पॉइंट की एनर्जी है 2 प्लस डिस्टॉर्शन एनर्जी है 2 प्लस 2 न्यू डिवाइड बाय 60 और SYT का स्क्वायर। वेरी गुड। तो 6e से 6e कैंसिल हो गया, जब आपने कंपेयर किया, है ना, तो 6e से 6e कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 न्यू से 2 प्लस 2 न्यू कैंसिल हो गया। तो बचा हुआ पार्ट आपका फाइनल आंसर आपका ये आ गया, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 3 सिग्मा 1 इक्वल टू SYT स्क्वायर, और यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दें तो SYT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी होल स्क्वायर। So this is the final formula that we will use during the solving the numericals on the maximum distortion energy theory under the triaxial stresses, है ना। So this is from my side, और अब मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। कोई क्वेरी हो आपकी तो प्लीज। हमने तीनों केसेस में पांचों तरह की थ्योरीज को कवर कर लिया है, ये डिस्कशन बहुत जरूरी था।
यूनि एक्साइल पर भी हमने पांचों को कवर किया है, बाई एक्साइल पर भी पांचों को कवर किया है, और ट्राई एक्साइल पर भी हमने पांचों को कवर किया है। प्लीज रिवाइज कर लीजिए इसको, ठीक है। अब कोई क्वेरी हो तो बताइए। स्टॉप शेयर करता हूं मैं। यदि क्वेरी ना हो तो फिर आप ना बोल सकते हैं। नो सर। वेरी गुड। चलिए, तो कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और हम न्यूमेरिकल, हाँ बोलिए, किसी की हो तो। सलमान कोई कुछ कह रहा था? थैंक यू सर। Okay, okay, welcome. Thank you. Thanks for listening. Stay home, stay safe. Okay.